Hi guys, welcome back to my channel. My name is Jincy, your unfiltered voice in the world of cinema, series, trailers and everything in between. आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं द ताज स्टोरी। फाइनली ये मूवी रिलीज हो गया है। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो बवाल मच गया था, काफी सेंसेशन क्रिएट किया था एंड आई वाज रीगरली वेटिंग फॉर द मूवी टू रिलीज। As you all know, the movie is based on controversial questions surrounding the construction of Taj Mahal, challenging conventional historical narratives about one of the world's most iconic monument. काफी controversial है, नहीं? यही जानने के लिए मैं भी मूवी देखने के लिए गई थी। In this film, the main lead is played by परेश रावल। मूवी 2 hours 45 minutes का था। काफी लंबा खींच लिया था इन लोग ने मूवी को। आराम से इन लोग कट शॉट करके 2 घंटे का मूवी बना सकते थे। अननेसेसरीली मूवी को बहुत खींचा गया है। जैसे फिल्म स्टार्ट होती है ना, इतना बड़ा डिस्क्लेमर उन लोग दिखाते हैं, डिस्क्लेमर के ऊपर डिस्क्लेमर खत्म ही नहीं हो रहा था। बैक टू बैक देवर डिस्क्लेमर्स, एक डिस्क्लेमर समझ में आता है। आई काइंड ऑफ फाउंड इट वेरी फनी। एक तरफ से मुझे लगा कि क्या ये लोग डर गए आफ्टर रिलीजिंग द ट्रेलर, जो हंगामा हुआ, बिकॉज कॉन्स्टेंटली इन ऑल द डिस्क्लेमर्स दे वर शोइंग कि ये मूवी काल्पनिक है। It has nothing to do with hurting anybody's sentiment. As far as casting is concerned, I did not like all the cast. कुछ cast बहुत लूज एंड में थे। परेश रावल, जाकिर हुसैन, इन दोनों को छोड़ के the side characters were not that strong. परेश रावल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत उम्दा काम किया। वो जब स्क्रीन पे आते थे, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस था, बाकी सबको खा जाते थे। तो he had a very strong impact on screen. Likewise जाकिर हुसैन also. मुझे 2 कैरेक्टर्स बहुत खल गए थे। टीवी सीरियल वाली एक्टिंग थी, बहुत ही ओवर एक्टिंग दिख रहा था स्क्रीन में, which was not required for film level. One was Neha Wagh, who was playing the daughter-in-law of Paresh Rawal, and the other daughter of Paresh Rawal. इन दोनों की एक्टिंग इतनी बकवास थी, ऐसे लग रहा था कि मैं कोई टीवी सीरियल देख रही हूँ। So how did I find the movie? So in nutshell, मुझे मूवी अच्छा लगा। It was not that great also. First of all, they should have kept the movie length a little shorter. 2 hours 45 minutes movie wasn't required. Not at least for a film subject like this. There were a lot of unnecessary scenes which they could have avoided, especially in the first half. There were some scenes which they could have easily been chopped out in the editing table. जो मूवी को establish करने में, या तो उसका डिटेल्स देने में, उसका इम्पैक्ट बढ़ाने में कुछ भी हेल्प नहीं करता। That scene was just there for what? I don't know. There was one more thing which I did not found it impactful, that परेश रावल बहुत ही जल्दी केस फाइल करता है, PIL फाइल करता है। जो डिसीजन है टू फाइल PIL, उसके पहले जो इंसिडेंट होता है wasn't enough for him to go and file a case. मतलब उससे पहले कुछ रक्कस नहीं होता है। एक वीडियो है जहाँ पे वो एक क्लेम करता है अबाउट ताजमहल, दैट ताजमहल इज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां। वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद ही बीइंग अ टूर गाइड ऑफ ताजमहल, he gets suspended and he loses his job. That reason alone was not enough for him to go and file a PIL, is what I felt. Second half is full of कोर्टरूम ड्रामा। सेकेंड हाफ में भी ऐसे कुछ सीन्स थे, हियरिंग आफ्टर हियरिंग, हियरिंग आफ्टर हियरिंग, हियरिंग आफ्टर हियरिंग। इतना सारे हियरिंग्स दिखाने की जरूरत नहीं थी। They could have cut short, trimmed it and squeezed it into 1 or 2 hearings, which could have created more impact. Plus, जो unnecessary back and forth जो हो रहा था hearings के बीच में, going back to the family, coming back to the courtroom, going back to the family, तो उसके दौरान हर hearings के बीच में they show how the family is getting harassed. Now that is also was not that strong enough, did not create an emotional impact to the audience, which again was not required. अगर आप लोग ने Oh My God देखा रहेगा, Oh My God में जब कोर्ट सीन्स होता है, when परेश रावल फाइल्स केस अगेंस्ट गॉड, तो उनके फैमिली को हैरेस किया जाता है। उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो लिंक था, मेड सम सेंस एंड क्रिएटेड अ इमोशनल इम्पैक्ट अमंग द ऑडियंस। इस मूवी में जो दिखाया है वाज वेरी लूज, एंड वो ना ही दिखाया होता तो अच्छा रहता। सो शायद से वहां पे उन लोग ट्रिम डाउन करके मूवी को थोड़ा शॉर्ट कर देते थे। देन व्हाट आई फेल्ट इज दैट कि बहुत डिटेलिंग में घुस गए थे। वंस द मूवी फ्लिप्स इनटू द कोर्ट सीन,
यहाँ से परेश रावल बुक निकाल के प्रूफ दिखाता है, उधर से जाकिर हुसैन बुक निकाल के प्रूफ दिखाता है कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, आई हैव थ्योरी, दिस इज द थ्योरी व्हाट आई होल्ड, दिस इज अ बुक, दिस इज अ प्रूफ। इतना सारा डिटेल, मुझे लगा कि मैं एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं स्कूल में या तो कॉलेज में वापस जा रही हूँ। देयर वर लॉट ऑफ डिटेल्स व्हिच वर गिवन which could have again cut short इतना डिटेलिंग दिखाने की जरूरत, बिकॉज people can lose interest in between because fortunately or unfortunately our people like to see masalas in film, no, they are so used to seeing item numbers in between, then stunts in between, fights in between. तो इस मूवी में वैसे कुछ हो नहीं रहा है, तो in order to hold the grip and attention of the audience, they should have given a tighter editing to this movie. तो फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग हो जाता है, नॉट दैट बोरिंग ऑल्सो, फिल्म डेवलप हो रहा है, कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लेते कंज्यूम होता है, थोड़ा सा स्लो रहता है फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ पिकअप होता है। व्हेन आई से पिकअप इज दैट फर्स्ट हाफ का जो कोर्ट रूम ड्रामा स्टार्ट होता है वो थोड़ा सीरियस नोट पे स्टार्ट होता है, बट सेकेंड हाफ में परेश रावल कम्स इन फॉर्म एंड उनके जितने भी क्वेश्चंस है और डिबेट्स होते हैं कोर्ट में, बहुत ही मजाकी तरीके से पूछते हैं और मजाकी तरीके से जवाब भी देते हैं। डेफिनेटली यू विल लाफ, डेफिनेटली यू विल हैव स्माइल ऑन योर फेस, सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे कुछ क्वेश्चंस जो परेश रावल ने पूछा वो मुझे बहुत ही बोल्ड और मुद्दे की बात लगी। स्पेशली एक डायलॉग था उनका जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया बताया, क्योंकि काफी सारी चीजें जो हमें हिस्ट्री में सिखाया जाता है, तो फॉर दैट फैक्ट I just generalize entire education system, उसको बहुत तोड़ मरोड़ के सिखाया जाता है बच्चों को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। इट इज अ फैक्ट दैट हिस्ट्री को थोड़ा बहुत मोल्ड किया है, मॉडिफाई किया है। वी कैन अग्री टू द फैक्ट दैट यू नो वी हैव बीन ब्लाइंडेड टू सर्टेन लेवल। अगर आप खुले दिमाग से ये फिल्म को देखने जाते हो विदाउट एनी ब्लॉकेज इन योर हेड, यू विल फाइंड दिस मूवी इंटरेस्टिंग, यू विल कम बैक होम asking lot of questions, wanting to know the truth, but अगर ऑलरेडी आप अपने दिमाग में एक सेट ऑफ ओपिनियन लेके जा रहे हो, you might get a little upset in certain scenes, you will find certain debates controversial, so yeah, mixed reaction आ सकता है ऑडियंस की तरफ से। So one thing which really hit me while watching this movie was having the guts to question the society, having the guts to taking stand for your belief. I am not in support of controversy in either ways, whether Taj Mahal was built by Shah Jahan, yes or no. Leaving that topic, I am generalizing the personality of somebody's being very vocal, standing up for yourself. जब आप भेड़ चाली में चलते हो ना, आपका वो पर्सनालिटी कभी बाहर निकल के नहीं आता है, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, अलग उठ के नहीं आ रहे हो, बिकॉज आप एक भीड़ का हिस्सा हो। So you are not questioning anything, you just believe or listen to whatever information you get and आप लोग मान लेते हो कि हाँ ये चीज करेक्ट है। इन ऑल डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एजुकेशन हो या रिलीजन हो या बिलीफ सिस्टम हो या हमको जो हमारे बुजुर्ग ने सिखाया, आपको जैसे सिखाया जाता है आप उस चीज को वैसे के वैसे ही बिलीव कर लेते हो। हैविंग द गट्स टू क्वेश्चन इज अ ब्रेव एक्ट। ये एक चीज इस मूवी में जो परेश रावल क्वेश्चन करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नीड गट्स टू आस्क questions or go against the system like this. That is something which I found very outstanding and that hit me a lot. बहुत impressive लगा मुझे। And there are lot of other good elements also. Courtroom drama में there are a lot of questions which have been asked, which मुझे बहुत ही अच्छा लगा कुछ questions. But majority, if I tell you to be frank enough, 80% of the questions were leading to religion conflicts, क्योंकि हिंदुत्व के बारे में बहुत नैक किया गया है। एक तरीके से एक कास्ट को बहुत ही सबसाइड किया गया था एंड हिंदुत्व को और हिंदुओं का महत्व बहुत ही इलैबोरेट करके बताया गया था। सो दैट इज समथिंग
थोड़ा कंट्रोवर्सी में जा सकता है. Apart from that, the end is very, very disappointing, guys. Very disappointing. I do not want to give any spoilers, but मैं उस चेयर पे सिर्फ बैठ के एंड का वर्डिक्ट देखने के लिए बैठी थी. I just wanted to know what will the judge in this movie will say towards the end. Meaning, what will the court decide, or what verdict the court will take towards the end after listening to both the parties' argument. But I was heavily disappointed by seeing the end of the movie, and I'm 100% sure आप लोगों को भी disappoint करेगा जब आप लोग ये movie देखने जाएंगे तो. But I would suggest, please do go and watch films like these. Yes, it is not commercially made. You will not find item numbers, songs, and or fight sequence or glamorized heroes in it. But it is a good watch. It will evoke questions in your head. It will create doubts. Few might get agitated, and it might also strike controversy. But it is a good watch. Would give a rating of 3.5 out of 5 for this movie. अगर ये movie थोड़ा और crisp और short होता और lengthy ना होता, tight editing होता, so it would have been little more better. So yes, guys, that's it for this video. I hope you guys like my review. If yes, please do like, share, and subscribe. Until I come with my next review or my next video, take care. Do this.